children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, movements of the body. Learning objectives. Movements in our body, the human skeletal system, cartilage and ligaments, joints, muscles, movement in other organisms. Movement is one of the important characteristics of all living organisms. All living organisms can move from one place to another except for plants. The movement of animals from one place to another is called locomotion. Plants cannot move as they are anchored to the soil by their roots, but they show their movements through parts. Similarly, living organisms can also move the different parts of their body. Some parts can move more than others. The extent of movement of any part depends upon the bones and how they are joined to each other. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये मूवमेंट शो करते हैं, है ना. तो जो एक्सेप्ट प्लांट्स, जो मूवमेंट होता है एनिमल्स का एक प्लेस से दूसरी जगह, उसे कहते हैं लोकोमोशन. प्लांट्स नहीं मूव कर सकते क्योंकि उनकी जो रूट्स हैं उनको फॉर्मली बाइंड करके रखती हैं, बट अपने प्लांट्स के थ्रू, अब जो प्लांट अपने पार्ट्स के थ्रू मूवमेंट शो करते हैं, जो आप प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ के आए हैं. तो इसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने बॉडी पार्ट को मूव करते हैं. कुछ पार्ट ज़्यादा मूव करते हैं दूसरे से, है ना. और जो मूवमेंट होता है किसी भी पार्ट का डिपेंड करता है अपॉन बोन्स और वो किस तरह से एक दूसरे से ज्वाइंट है. We can stand straight, bend, sit or run easily because of the bones and muscle in our body. All the bones of our body are together known as skeleton. There are 206 bones in our body. The bones meet each other and these meeting points are called. हम खड़े होते हैं, बेंड होते हैं, भागते हैं, बैठते हैं easily because of the bones and muscles. आपको पता है हमारी बॉडी में कितने बोन्स हैं? 206. तो जितने भी जो बोन्स हैं हमारी बॉडी के साथ में उन्हें बोला जाता है स्केलेटन. बोन्स जहाँ पे मिलते हैं उन्हें कहा जाता है जॉइंट्स, यानी जिनका मीटिंग पॉइंट होता है. Muscles help the bones to move. They are like elastic threads that join bones with one another. Contraction and relaxation of muscles make the bones move. As a result, we are able to walk, run, dance and play. Let us study how our skeletal system works. मसल्स जो हैं बोन्स को मूव करने में हेल्प करते हैं. ये इलास्टिक थ्रेड्स के जैसे होते हैं जो बोन्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके रखते हैं. कंट्रैक्शन एंड जो रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, उसकी वजह से बोन मूव करते हैं, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, भाग पाते हैं, डांस कर पाते हैं. तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो वर्क करता है. द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. The skeletal system defines the framework or the structure of the body. It is the structure showing how the bones of the body are connected. Skeletal system is made up of bones, cartilages and joints. Bones have different shapes and sizes. We can feel long bones in the limbs and small bones in the wrists, ankles and fingers. The network of bones in our body forms the skeleton. जो हमारा skeletal system है, this is the framework or the structure of our body. ओके ये स्ट्रक्चर है जो शो करता है कि किस तरह से जो बोन्स है बॉडी की वो कनेक्टेड है. स्केलेटल सिस्टम आपका बना है बोन्स, कार्टिलेजेस एंड जॉइंट से. तो बोन्स की डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस होती हैं, जैसे कि आपके लिम्स में लंबी लंबी बोन्स आप फील कर सकते हैं और स्मॉल बोन्स हमारे रिस्ट, एंकल्स एंड फिंगर्स में होती है. The earlobe and the tip of the nose are made of a substance not as hard as a bone. This is called a cartilage. Each bone is hard outside and has a spongy tissue inside. The long bones of the body have a central cavity filled with bone marrow. Bone marrow makes different blood cells. Bones are composed of calcium, phosphorus and fibrous matter. They are made of cells and can mend themselves. अच्छा, आपने कभी देखा है जो हमारे ईयर लोब्स होते हैं या जो हमारे नोज के टिप होती हैं, ये बोन की तरह हार्ड नहीं होता क्योंकि ये बने होते हैं कार्टिलेज से. ओके हर बोन हार्ड होती है आउटसाइड से, बट इसमें एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है अंदर. तो जो लॉन्ग बोन्स होती है बॉडी की, इनमें एक सेंट्रल कैविटी होती है जो फिल्ड होती है बोन मैरो के साथ. एंड बोन मैरो का काम क्या होता है? ये डिफरेंट ब्लड सेल्स को बनाते हैं. बोन्स आर कंपोज ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड फाइब्रस मैटर. ये सेल से बने होते हैं एंड अपने आप को मेंट भी कर लेते हैं. Functions of the skeleton. In human beings and other mammals, the skeleton lies within the body. It has some important functions. Our body has a specific shape or account of the skeleton. The skeleton supports our body. The bones in the back and strong, sturdy bones of our bags and legs. दोबारा बोलती हूँ, इसे ऊपर कर दो. 3 पार्ट्स है ना इसके, बस.
Functions of the skeleton. In human beings and other mammals, the skeleton lies within the body. It has some important functions. Our body has a specific shape on account of the skeleton. The skeleton supports the body. The bones in the back and strong, sturdy bones of our legs enable us to stand erect. The bones of our lower limbs can support the weight of the entire body. The skeleton protects the delicate organs of our body. There are several delicate organs inside our body which need to be protected. For example, the ribs protect the heart and lungs, the skull protects the brain and the sense organs, and the backbone protects the spinal cord. अब स्केलेटन के फंक्शन क्या है? सबसे पहले कि ये हमारी बॉडी को स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करते हैं. स्केलेटन हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, राइट. जो बोन्स हमारी होती हैं बैक में एंड स्ट्रॉन्ग स्टर्डी यानी अनब्रेकेबल जो बोन्स होती हैं हमारी लेग्स में, वो हमें सीधा खड़े होने में हेल्प करती हैं. हमारी जो लोअर लिम्स की जो बोन्स होती हैं वो हमारी पूरी बॉडी का जो वेट है उसको सपोर्ट करती हैं. स्केलेटन जो है हमारी बॉडी के डेलिकेट ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि रिब जो है वो प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, लंग्स को, स्कल, ब्रेन और सेंस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. ओके, एंड जो बैकबोन है वो प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को. पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन. द बोन्स फॉर्मिंग द स्केलेटन आर ग्रुप्ड टुगेदर. देयरफॉर द study of a skeleton can be divided into the study of skull, rib cage, backbone, pelvic girdle and the limbs. Skull. The bony case that makes our head is a skull. It is the head and the face of the skeleton. There are a total of 22 bones in the skull, 14 in the face and jaw, and remaining 8 bones in the upper part of the head. The lower jaw is fixed to the upper jaw. We can move only the lower jaw of the skull. This enables us to eat and speak. The facial bones and the skull protect the brain and the delicate sense organs. The skull has holes for eyes and nose. The nose does not have a bone. It is made of tough white tissue called cartilage. See, हम skull से शुरू करते हैं. देखिए skull, ये आपको नज़र आ रहा है skull. ओके, इसमें आपके हेड एंड फेस है स्केलेटन का. टोटल 22 बोन्स होती हैं स्कल में, आउट ऑफ विच 14 आपकी होती हैं फेस में, फेस एंड जॉ, एंड जो बाकी की 8 हैं वो आपकी होती है अपर पार्ट ऑफ द हेड. जो लोअर जो है वो फिक्स होता है अपर जॉ के साथ, तो हम जो स्कल का लोअर जो है सिर्फ उसे ही मूव कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम खाना खा पाते हैं, बोल पाते हैं. फेशियल बोन्स और जो स्कल हैं वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं और डेलिकेट सेंस ऑर्गन्स को. स्कल में आपके होल्स होती है फॉर आइज एंड नोज, एंड जो नोज है उसमें बोन नहीं है. एक्चुअली एक आपका भी मैंने बताया था कि टफ वाइट टिश्यू से बना है जिसे कहते हैं कार्टिलेज. रिब केज. The rib cage is made of 12 pairs of thin curved bones. They are attached to the backbone at the back and to the breastbone or sternum in the front. The last 2 pairs of ribs are not attached to the breastbone. They are called floating ribs. The rib cage protects the delicate organs like the lungs, heart and the kidneys. रिब केज जो है ये आपके बने हैं 12 पेयर्स ऑफ थिन कर्व्ड बोन्स. ये आपके पेयर्स में होते हैं एंड ये आपके अटैच है बैकबोन से एट द बैक टू द ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम इन द फ्रंट. जो लास्ट की 2 पेयर्स हैं रिब्स के वो अटैच नहीं है ब्रेस्ट बोन के साथ, तो इन्हें कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स. एंड रिब केज का काम क्या होता है कि हमारे जो इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स हैं जैसे लंग्स, हार्ट एंड किडनीज, इनको प्रोटेक्ट करना. बैकबोन. The backbone or the vertebral column is a long hard structure that runs from the base of the skull to the lower back. It consists of 33 small bones known as the vertebrae. The human body has 33 vertebrae at birth, some of which fuse so that the adult human body has only 26 vertebrae. Okay, तो जो backbone या जिसे vertebral column भी कहा जाता है कि long hard structure है जो कि आपके स्कल के बेस से होता हुआ लोअर बैक तक जाता है. इसमें आपके 33 स्मॉल बोन्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है वर्टिब्रे. ओके, तो जब बर्थ के टाइम में ह्यूमन बॉडी में 33 वर्टिब्रे होते हैं जिनमें से कुछ फ्यूज हो जाते हैं, तो एडल्ट ह्यूमन बॉडी में आपके होते हैं ओनली 26 वर्टिब्रे. There are joints between each vertebrae which helps us to bend and twist our back. Each vertebra is a ring-like structure with a hole or cavity in the middle. The spinal cord passes through this cavity. The vertebral column gives support to the body and protects the spinal cord, which is a very delicate organ. As we know that such animals that have a vertebral column are known as vertebrates. Examples of vertebrates are fish, amphibians, reptiles, birds and mammals. तो देखिए हर वर्टिब्रे में आपके जॉइंट्स होते हैं जो कि हमें अपनी बैक को बेंड ट्विस्ट करने में हेल्प करते हैं. हर वर्टिब्रा का एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें होल या कैविटी होती है मिडल में. तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो इस कैविटी से पास होता है. वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, जो कि आपका बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है. ओके, तो ये देखिए ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं वर्टिब्रेट्स के. नेक्स्ट इज गर्डल्स.
There are two girdles in the human body, in the pectoral or shoulder girdle and the pelvic hip girdle. The shoulder girdle is made up of a pair of shoulder bones and collarbones. The pelvic girdle is a portion of the skeleton that connects leg to the upper part of the body. It is connected to the vertebral column and is made of 3 pairs of hip bones joined to each other. अब 2 तरह के गर्डल हैं, आपका शोल्डर गर्डल जो कि आपका बना है पेयर ऑफ शोल्डर बोन्स एंड कॉलर बोन्स, एंड आपका दूसरा है पेल्विक गर्डल जो कि है आपका पोर्शन है स्केलेटन का जो लेग्स को कनेक्ट करता है बॉडी के अपर पार्ट तक। ओके, ये आपके वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्टेड होता है और ये 3 पेयर ऑफ हिप बोन्स से बना है जो एक दूसरे के साथ जॉइंट है। लिम्स, आर्म्स एंड लेग्स। द लिम्स are arms and legs of the skeleton. Each arm including hand is made of 32 bones. Each leg including foot is made of 30 bones. The limbs provide strength for doing various activities like movement, holding, etc. Limbs यानी हमारे जो arms and legs हैं। अब आपके जो arms हैं जिसमें आपके each arm यानी including hand वो आपके बने 32 bones से, और हर जो leg है आपकी जिसमें आपके foot भी included है वो बने 30 bones से। तो जो लिम्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज। The upper arm has only one long bone called the humerus. The lower arm below the elbow has 2 long bones, the radius and the ulna. The bones of the upper arm are attached to the shoulder blades at the top. The hip bone is made of 3 bones joined together. The upper part of the leg has a single long and sturdy bone called the femur or the thigh bone. It is the longest bone in the body. The part of the leg from knee below has 2 bones, the tibia and the fibula. At the end of these is the foot. Each foot is made of a number of small bones. Although the skeleton is made of hard bones, it is flexible and allows the body to bend, twist, turn and lift. This is on account of the joints. आपके जो अपर आर्म होते हैं इसमें आपकी एक लंबी बोन है जिसे कहा जाता है ह्यूमरस। अब जो लोअर आर्म है यानी कि एल्बो से आपका जो नीचे का पार्ट है इसमें 2 बोन्स होती हैं आपकी रेडियस एंड अल्ना। अब जो बोन्स है अपर आर्म की अटैच होती हैं आपके शोल्डर ब्लेड के साथ टॉप पे। हिप बोन जो यहाँ पे 3 बोन्स के साथ बना है जो आपस में जॉइंट है। तो अपर पार्ट जो है लेग का उसमें एक सिंगल लॉन्ग एंड स्टर्डी बोन है जिसे कहा जाता है फीमर या फिर थाई बोन। ये लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की, याद रखना। एंड जो पार्ट है लेग का इसमें अब जो आपका जो पार्ट है लेग का फ्रॉम नी के जो नीचे है आपका इसमें 2 बोन्स आती है जिसे कहा जाता है टिबिया एंड फिबुला, और इनके एंड में आपका आता है फुट। हर फुट जो है वो आपके बना नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स से। हालांकि जो स्केलेटन आपके हार्ड बोन से बना है बट ये फ्लैक्सिबल होता है एंड बॉडी को ट्विस्ट, टर्न एंड लिफ्ट करने में हेल्प करता है। ओके, सो नेक्स्ट इज कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स. The bones are connected to each other at joints. There is a soft cartilage present at the ends of bones which protects and helps the bone during the movement. It actually reduces friction between the bones. Cartilage can be felt on the upper part of a ear. Ligaments are tight and strong, stretchable band-like structures that support the joint. They hold the bones together near the joints. Bones जहाँ पे आपके connected होते हैं एक दूसरे के साथ वो आपके joints होते हैं. ओके तो एक सॉफ्ट कार्टिलेज प्रेजेंट होता है इन बोन्स के एंड्स पे जो कि प्रोटेक्ट करते हैं एंड बोन को हेल्प करते हैं मूवमेंट के टाइम पे। तो एक्चुअली ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं बोन्स के बीच का। कार्टिलेज को आप अपने ईयर के अपर पार्ट पे फील कर सकते हैं। लिगामेंट्स आपके टाइट और लॉन्ग स्ट्रेचेबल बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जॉइंट को सपोर्ट करते हैं। ये बोन्स को होल्ड करने में आपके जॉइंट्स के पास में होल्ड करने में इनको हेल्प करते हैं। डू यू नो देयर आर 54 बोन्स इन आवर हैंड, फिंगर्स एंड रिस्ट्स. 5 small bones that make up the wrist are called carpals, while 7 small bones of the ankle are called tarsals. 54 bones है हमारे hands में, fingers में and wrist में. 5 small bones जो हमारे wrist को बनाती हैं उन्हें कहते हैं carpals, and जो 7 small bones है हमारे ankle में उन्हें कहा जाता है tarsals. Joints. In our daily life, we bend, turn and twist. What help us to bend, twist and turn? Our joints. A joint is a place in the skeleton where 2 bones meet. हम डेली लाइफ में ना बेंड करते हैं, टर्न करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। किसकी हेल्प से? जॉइंट की हेल्प से। तो जॉइंट एक ऐसा प्लेस है स्केलेटन में जहाँ पे 2 बोन्स मीट करती हैं। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग
इलास्टिक बैंड्स कॉल्ड लिगामेंट्स। अब बोन्स को साथ में कौन हेल्ड करके रखता है? स्ट्रॉन्ग इलास्टिक बैंड्स, जिन्हें कहा जाता है लिगामेंट्स। A cartilage between the two bones is a joint, helps the bones to move smoothly. Some joints are movable while others are immovable. Joints between the bones of a skull are immovable. The movable joints in the body are hinge joint, ball and socket joint, pivot joint and gliding joint. अब जो कार्टिलेज होता है दो बोन्स के बीच का में, जॉइंट्स के बीच में, वो बोन्स को स्मूथली मूव करने में हेल्प करता है। कुछ जॉइंट्स आपके मूवेबल होते हैं जबकि कुछ आपके इमूवेबल होते हैं। जैसे कि जॉइंट्स अगर हम बात करें जो आपकी बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल है, वो आपके क्या है? इमूवेबल। जबकि मूवेबल जॉइंट्स आपकी बॉडी में है ये सारे हिंज, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। Activity 1. Ask your friend to tie a long scale tightly on your arm. Try to bend your arm. Can you do it? No. This is because your arm bends with the help of a joint located at the elbow. Find out some other joints in your body which help you to find in different directions. ये activity आप खुद कर सकते हैं। Types of joints. There are different kinds of joints in the human body. They are classified as follows. Fixed joint. A fixed joint is a joint in which the bones are joined with each other, but the joint cannot be used to move the bones. The bones are fixed at one place. Since the bones are joined by a fixed joint, they cannot be moved, so they are called immovable joints. फिक्स जॉइंट आपका एक जॉइंट होता है जिसमें बोन्स आपके जॉइंट होते हैं एक दूसरे के साथ, बट जॉइंट जो है उसको बोन्स को मूव करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। तो बोन्स आपकी एक प्लेस पे फिक्स्ड होंगी। अब क्योंकि फिक्स्ड आपकी बोन्स फिक्स्ड हैं, जॉइंट है फिक्स्ड जॉइंट पे, तो मूव नहीं कर सकते, तो ऐसे जॉइंट को कहा जाता है आपका immovable joints. For example, the bones in our head are joined by fixed joints. जो हमारी हेड में आपकी बोन्स होती है वो जॉइंट होती है फिक्स्ड जॉइंट से। Slightly movable joint. Such joints allow only slight movement required for flexibility. They have a thin layer of cartilage. They can be seen in between the vertebrae of the backbone. अब slightly movable बोला है तो यानी कि एक slight movement ही allow करेंगी। ओके तो जैसे इसमें होता है आपका एक थिन लेयर होती है कार्टिलेज की, जो कि आपके जो बैकबोन का जो वर्टिब्रे उसके बीच में ये पाया जाता है। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. दीज जॉइंट्स अलाउ फ्री मूवमेंट. हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट आर मूवेबल जॉइंट. फ्रीली मूवेबल है तो यानी कि ये जो जॉइंट्स हैं वो फ्री मूवमेंट अलाउ करेंगे. ओके और ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके मूवेबल जॉइंट्स के. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. These joints allow movement in all directions. The end of one bone is shaped like a ball, which fits into a cavity of the other bone. Shoulder and hip joints are ball and socket joints. अब ये जो joints है ये सारे direction में movement allow करते हैं. तो end होता है एक bone का, वो एक ball की तरह shaped होता है, जो कि cavity यानी हम socket भी बोल सकते हैं, दूसरे bone के उसमें fit होता है. Shoulder and hip joints आपके ball and socket joints हैं. Hinge joint. These joints allow movement in the forward and backward directions only. They are similar to the hinges of the door that allow the doors to open and close. We can bend our elbows and knees in only one direction, elbows towards front and knees towards back. Try to bend them in other directions. It will not be possible. ये जो joints होते हैं ये movement को allow करते हैं forward and backward directions में only. और जैसे ये डोर्स के हिंजेस होते हैं ना, उनके जैसे होते हैं जो डोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं, इसीलिए इसे हिंज जॉइंट कहा जाता है. जैसे आप अपनी एल्बो एंड जो नीज है एक ही डायरेक्शन में कर सकते हैं आप इन्हें बेंड. एल्बोज को आप फ्रंट में कर सकते हैं, ओके लाइक दिस, इस तरह से. आप इसे बैक में नहीं कर सकते. एंड नीज को आप बैक में बेंड कर सकते हैं. अब आप इनको दूसरे डायरेक्शन में जब करेंगे ना तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा इनका मूवमेंट. Pivotal joint. A pivotal joint is a joint in which the organs can be moved only in the form of rotation. The joint between the skull and the first two vertebrae is an example of a pivot joint. It enables us to move our head from side to side and up and down. Pivot joint में क्या होता है कि organs को move किया जाता है only in the form of rotation. Okay? जैसे जो joint है हमारे skull के बीच में है and जो फर्स्ट टू वर्टिब्रे हैं, ये पिवट जॉइंट के एग्जाम्पल है. इसकी वजह से हम अपने हेड को साइड टू साइड एंड अप डाउन मूव करा सकते हैं. ग्लाइडिंग जॉइंट. द बोन्स दैट फॉर्म दिस जॉइंट हैव फ्लैट एंड्स. दीज बोन्स कैन मूव फ्रॉम साइड टू साइड एज वेल एज बैक एंड फोर्थ. द बोन्स ग्लाइड ओवर वन अनदर टू प्रोवाइड स्मॉलर intricate movements. Examples of such movements are joint between the ankle bones, joint between wrist bones, joint between two adjacent vertebrae. अब देखिए जो बोन्स
क्या होती हैं कि इस जॉइंट में इनके फ्लैट एंड्स होते हैं, तो ये बोन्स क्या करते हैं, साइड टू साइड और बैक एंड फोर्थ भी ये मूव करते हैं। तो बोन्स जो है वो ग्लाइड करती है एक दूसरे के ऊपर, जो कि एक स्मॉलर और इंट्रिकेट मूवमेंट आपको प्रोवाइड करती हैं। तो कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे जॉइंट आपके होते हैं बिटवीन द एंकल बोन्स, या फिर बिटवीन रिस्ट बोन्स, या फिर बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टेब्रे। Muscles. Every day we perform a number of actions like running, walking, sitting, climbing, and many more. These movements are made possible with the help of bones and muscles present in our body. There are about 600 muscles in our body which are classified as voluntary or skeletal muscles, involuntary or smooth muscles, and cardiac or heart muscles. हम डेली बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, वॉकिंग, सिटिंग, क्लाइंबिंग, तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल्स। एंड आपको पता है हमारी बॉडी में 600 मसल्स हैं, एंड इनको क्लासिफाई किया गया है मसल्स को इन कैटेगरीज में। Number 1 is voluntary or skeletal muscles. These muscles are connected to bones. They help us to move. They are controlled by our will. For example, muscles of the legs help us to walk on. Muscles of the hand help us to write, hold, clap, etc. ये जो मसल्स होती है बोन्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, ये मूव करने में हेल्प करती है और ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि जो आपके लेग्स की मसल्स होती हैं, है ना, वॉक करने के लिए आप यूज़ करते हैं। हैंड की जो मसल्स है आपको राइट लिखने में, होल्ड करने में, क्लैप करने में हेल्प करते हैं। Involuntary or smooth muscles, these muscles are not connected to bones. They are not under the control of our will. They are present in the internal organs such as lungs, stomach, and intestine. For example, muscles present in the stomach help to mix and mash the food. Muscles in the chest help us to breathe, etc. अब involuntary muscles जो हैं ये bones के साथ connected नहीं होती हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ओके, ये इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे लंग्स हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन है। जैसे कि आपके स्टमक में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं ये फूड को मिक्स एंड मैश करने में हेल्प करती हैं, एंड जो मसल्स आपकी चेस्ट में होती हैं ये ब्रीथ करने में हेल्प करती हैं। सो ये हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं काम करते हैं। Cardiac or heart muscles. There are special muscles present in the heart. They help the heart to pump blood to different parts of the body. None of the activities described above would be possible if muscles did not receive adequate supply of blood. It is through the circulatory system that all the parts of our body from head to toe receive blood. अब ये स्पेशल मसल्स होती हैं जो आपके हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, ये हार्ट को ब्लड को पंप करने में हेल्प करती है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हमारी बॉडी की जो अभी हमने ऊपर डिस्क्राइब की, जो ऊपर पढ़ी, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगे अगर मसल्स को एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड नहीं मिलेगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ये होता है कि जो जितने भी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, लाइक हेड टू टो, इनको ब्लड रिसीव होता है। What makes the bone move? Muscles are connected to the bones by tendons, which are strong and flexible bands of tissues. The contraction and relaxation of muscles help the bones to move. For example, up and down movements of our arm are controlled by two muscles, biceps and triceps. Voluntary muscles work in pairs to move a bone. When any one muscle of a pair contracts, the other relaxes. When the muscle contracts, it becomes short. It regains its shape when it relaxes. When we bend our arm, the bicep muscles contract and bulge out. It pulls the bones of the lower arm and brings them closer to the shoulder. As a result, the arm bends at the elbow. Similarly, when we straighten our arm, the tricep muscles contract and pull the forearm back to its original position. देखिए, मसल्स आपके कनेक्टेड होते हैं बोन्स के साथ बाय टेंडन्स, जो आपके स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बैंड्स होते हैं टिश्यूज़ के। तो जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, दे हेल्प बोन्स टू मूव। जैसे कि अप एंड डाउन मूवमेंट होता है हमारा आर्म का, ये कंट्रोल इनको करते हैं दो मसल्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। ओके, अब जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं दे वर्क इन पेयर, ठीक है, वो पैर में काम करते हैं बोन को मूव करने के लिए। जब एक मसल होती है पैर की कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दूसरी रिलैक्स हो जाती है, फिर जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो शॉर्ट हो जाती है, अब वो अपना जो शेप है रीगेन कर लेती है जब ये रिलैक्स होती है। जब हम अपनी आर्म को बेंड करते हैं तो जो बाइसेप मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं एंड बल्ज आउट हो जाती हैं। फिर ये क्या करते हैं, ये बोन्स को पुल करती हैं लोअर आर्म की, एंड देन ये शोल्डर के करीब उनको लेके जाते हैं। एज ए रिजल्ट आर्म जो है बेंड हो जाती है एल्बो पे। सिमिलरली जब हम अपना आर्म को स्ट्रेटन करते हैं तो जो ट्राइसेप मसल्स हैं आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एंड फोर आर्म को पुल करती हैं उसके ओरिजिनल पोजिशन में। मूवमेंट इन अदर ऑर्गेनिजम्स।
We have learned about how body parts of human beings move. Let us study how movement takes place in some other organisms. Birds. Most of the birds are well adapted for flying. The streamlined shape of a bird's body helps it to fly in the air. The forelimbs, just like hands in human beings, are modified to forearms. These wings are connected with very strong wing muscles. The large, powerful chest muscle allow them to flap their wings and fly. The birds move these muscles to flap their wings up and down. The flapping of wings enables the bird to make downstroke, the downward movement of wings, and upstroke, the upward movement of wings. अच्छा देखिए, ज़्यादातर बर्ड्स आपकी दे आर वेल अडेप्टेड फॉर फ्लाइंग. तो स्ट्रीमलाइन जो शेप होती है बॉडी की, उनको हेल्प करता है फ्लाई करने में. जो 4 लिम्स होते हैं, जैसे कि हमारे हैंड्स होते हैं, उनके मॉडिफाई हो जाते हैं टू फॉर्म विंग्स. तो ये विंग्स जो है कनेक्टेड होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंग मसल्स के साथ. फिर जो लार्ज पावरफुल चेस्ट मसल्स होते हैं, उनको उनके विंग्स को फ्लैप करने में और फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. ओके. फिर जो बर्ड्स है वो क्या करती है, मूव करती है तो ये मसल्स को टू फ्लैप देयर विंग्स अप एंड डाउन. तो जो फ्लैपिंग होता है विंग्स का, इससे बर्ड को हेल्प होता है टू मेक डाउन स्ट्रोक द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स एंड अप स्ट्रोक upward movement of wings. When a bird flies, an upward force exerted by the chest muscles pushes the bird away from the ground. This upward force is called lift. It then flaps its wing and moves forward. The feather also assists them in flying. ओके, तो जब एक बर्ड फ्लाई करती है तो एक अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट किया जाता है चेस्ट मसल्स के द्वारा, एंड देन वो बर्ड को पुश करता है अवे फ्रॉम द ग्राउंड. तो इस अपवर्ड फोर्स को कहा जाता है लिफ्ट. उसके बाद ये फिर अपने विंग्स को फ्लैप करती है एंड फॉरवर्ड मूव करती है. फेदर जो है वो भी फ्लाई करने में इसको हेल्प करते हैं. In addition to this, the birds also have very lightweight skeleton as their bones are hollow. This reduces the weight of their body and the wings can easily lift them into air. The hind limbs enable it to walk and perch. इसके अलावा बर्ड्स की एक्चुअली क्या होता है कि बहुत ही लाइट वेट स्केलेटन होता है, क्योंकि उनकी बोन्स हॉलो होती हैं. तो इससे भी क्या होता है कि उनका जो वेट होता है बॉडी का वो रिड्यूस हो जाता है और फिर वो अपने विंग्स को ईजिली लिफ्ट करते हैं एयर में. और जो हिंड लिम्स होते हैं इनको वॉक करने में एंड पर्च करने में हेल्प करते हैं. Cockroach. A cockroach can walk, climb and fly. The cockroach has 3 pairs of legs and 2 pairs of wings that help it to walk and fly. The pair of legs in the front is the smallest and works like brakes when a cockroach is running. The middle pair of legs can move forward as well as backward. The cockroach uses this pair of legs to increase or decrease its speed. The pair of legs at the back is used by a cockroach to move forward and increase speed. The front wings of cockroach just act as protection for the back wings. The back wings are actually used by a cockroach to fly small distances. The hard outer skeleton helps it in movement and its breast muscles help it to move its wings to fly. कॉकरोच आपका वॉक कर सकता है, क्लाइंब कर सकता है और उड़ता भी है. कॉकरोच के 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं जो उसको वॉक एंड फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. जो पेयर्स ऑफ लेग होते हैं इसके फ्रंट में वो छोटे होते हैं और वो एक ब्रेक की तरह काम करते हैं जब कॉकरोच भागता है. तो जो मिडिल पेयर होते हैं लेग्स के वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करते हैं एंड कॉकरोच जो है इस पेयर को यूज़ करता है अपनी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए. एंड जो पेयर ऑफ लेग्स इसके बैक में होते हैं उसको कॉकरोच यूज़ करता है टू मूव फॉरवर्ड एंड इंक्रीज स्पीड. तो जो फ्रंट विंग्स होते हैं कॉकरोच के वो जस्ट एक मतलब प्रोटेक्शन होते हैं बैक विंग्स के लिए. तो जो बैक विंग्स होते हैं ये एक्चुअली इसको कॉकरोच यूज़ करते हैं छोटे छोटे डिस्टेंस में उड़ने के लिए. एंड जो हार्ड आउटर स्केलेटन होता है इसके मूवमेंट में हेल्प करता है एंड इसकी जो ब्रेस्ट मसल होती है इसको मूव करने में, इसके विंग्स को मूव करने में हेल्प करती है. अर्थवर्म. एन अर्थवर्म इज अ स्मॉल tube like insect. We can see earthworms more easily in rains. This is because they live in soil and during rainy season the soil gets filled with water. This forces them to come out in the open. अर्थवर्म आपका एक ट्यूब जैसा इंसेक्ट होता है और आपको जनरली बारिश के टाइम पे दिखते हैं क्योंकि ये वाटर आपका सॉइल में रहता है और बारिश के टाइम पे क्या होता है कि सॉइल के अंदर पानी भर जाता है तो इससे वो बाहर आ जाते हैं. द अर्थवर्म्स आर मेड अप ऑफ ए सेट ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल रिंग्स फॉर लोकोमोशन. Every ring has a small S-shaped claws. These claws have tiny stiff hair-like projections called bristles or chaetae that dig in the soil and hold onto it. The earthworms move from one place to another by contracting and expanding the muscular rings. The rings in front expand to move ahead. The S-shaped claws hold to the new place. Then the front rings
contract and back rings expand, bringing back claws to the new place. By this alternate expansion and contraction of the rings, earthworms move from one place to another. अच्छा, इसमें ना अर्थवर्म बने एक्चुअली सेट होता है सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल रिंग्स का, जिसकी वजह से मूवमेंट करते हैं. तो हर रिंग एक आपका एस शेप जैसा क्लॉज होता है, और ये आपके ये जो क्लॉज होते हैं टाइनी स्टिफ हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे कहते हैं ब्रिसल, या फिर इन्हें छेटे भी कहा जाता है. तो अर्थवर्म जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते हैं अपनी मस्कुलर रिंग्स को कंट्रैक्ट और एक्सपेंड करके. जो आप फ्रंट की जो रिंग्स होती हैं वो एक्सपेंड होती हैं, फिर आगे बढ़ता है. फिर जो एस शेप क्लॉज होते हैं वो क्या करते हैं, वो होल्ड कर देते हैं टू द न्यू प्लेस. फिर जो फ्रंट रिंग्स होती हैं वो कंट्रैक्ट होती हैं एंड बैक रिंग्स एक्सपेंड होती हैं, जिससे कि जो वो वापस क्लॉज को लेकर आते हैं न्यू प्लेस में. तो ये जो अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है इनकी रिंग्स का, उसकी वजह से अर्थवर्म एक प्लेस से दूसरे में मूव करता है. Earthworms move easily on hard and slippery surfaces. They do not have bones in their body. A slimy substance secreted by the body helps the earthworm in their movement. Earthworm जो है किसी भी हार्ड या स्लिपरी सरफेस पे इजीली मूव करते हैं. इनके बोन्स नहीं होते हैं, तो एक ये स्लाइमी सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से अर्थवर्म को मूवमेंट में हेल्प मिलती है. If you put an earthworm on a flat surface like glass or a polished, smooth surface, the earthworm will find it difficult to move as their S-shaped claws will not be able to dig or hold on to anything on such a surface. अगर आप किसी भी earthworm को किसी फ्लैट सरफेस पे जैसे ग्लास या पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस पे रखेंगे तो वो मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका जो S-shaped claws होता है वो क्या करेगा, वो किसी भी सरफेस को होल्ड नहीं कर पाएगा. ओके. फिश. We all have seen fish. Fish are probably the only type of animal which has the maximum variety. The common method for movement of fish is to swim. Let us understand how their body structure helps them in swimming. The backbone of fish is made up of small bones which help in bending. The body of the fish is streamlined. This shape enables it to make way in water. The limbs are modified into fins. The fins help the fish to move as well as maintain balance in water. The tail of the fish helps in changing direction of the fish. To move, the fish bends the front part of its body to one side. This creates a space in water. The tail moves in the opposite direction. Quickly, the front of the fish bends in the other direction, thus making space in water for movement. Apart from this, fish have air bladders. If the fish wants to rise up in the water, it releases air from its bladder, thus making itself light. To move deeper in water, it traps more air in its bladder. देखिए, फिश की जो बैकबोन होती है ये बनी होती है छोटे छोटे बोन्स की, जो उसको बेंड करने में हेल्प करती हैं. बॉडी जो होती है फिश की स्ट्रीमलाइंड होती है, तो ये जो बॉडी होती है, जो शेप होता है, इसको वाटर में रास्ता बनाने में या स्विम करने में हेल्प करते हैं. इनके जो लिम्स होते हैं ये मॉडिफाई हो जाते हैं आपके फिन्स में. फिन्स जो है फिश को मूव करने में, इसके अलावा बैलेंस को मेंटेन करते हैं वाटर में. टेल जो होती है फिश की, वो डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है. तो मूव करने के लिए फिश क्या करती है, पहले वो फ्रंट पार्ट को अपनी बॉडी का एक साइड में मूव करती है, इससे स्पेस हो जाता है वाटर में. फिर टेल जो है मूव करती है ऑपोजिट डायरेक्शन में क्विकली. तो ये जो क्विकली जो फ्रंट होता है फिश का, वो बेंड होता है दूसरी डायरेक्शन में, इससे कि स्पेस हो जाता है वाटर में मूवमेंट के लिए. इसके अलावा फिश के एयर ब्लैडर्स होते हैं. अगर फिश चाहती है कि वो वाटर में थोड़ा सा राइज अप हो जाए तो वो एयर को रिलीज कर देती है अपनी ब्लैडर से, जिससे कि वो लाइट हो जाती है. अगर वो पानी के अंदर और डीप जाना चाहती है तो ये ज़्यादा एयर को ट्रैप कर लेती है अपने ब्लैडर में. स्नेल. A snail is famous as the slowest moving land animal. The world record for the speed of the fastest moving snail is 13 millimeter in a second. A snail has the thick outer shell for protection of its body. The shell moves along as the snail moves. It can even hide its head inside the shell. It has a strong muscular foot below its shell. The muscular contractions of its foot along the surface help the snail to move. The part of the foot that touches the ground has thick and slippery liquid called mucus. The foot slips over the mucus, and in this way the snail moves from one place to another. Snail leaves a trail while moving. स्नेल आपका एक स्लोएस्ट मूविंग लैंड एनिमल है. तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बना है स्पीड जो है फास्टेस्ट मूविंग स्नेल का, वो था 13 मिलीमीटर इन अ सेकेंड. स्नेल का एक थिक आउटर शेल होता है
जो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। शेल जो है वो मूव करता है जैसे जैसे स्नेल मूव करता है। ये अपने हेड को शेल के अंदर जो है हाइड करके रख सकता है। इसका स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फुट होता है इसके शेल के नीचे। तो जो मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है इसके फुट का अलोंग द सरफेस, इसकी वजह से जो स्नेल है वो मूव करता है। एंड जो पार्ट होता है फुट का जो ग्राउंड को टच करता है उसमें थिक और स्लिपरी लिक्विड होता है जिसे कहते हैं म्यूकस। फुट जो है इस म्यूकस के ऊपर स्लिप करता है और इस तरह से स्नेल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। और जब कभी भी ये मूव करता है तो इट लीव्स अ ट्रेल। Snake. The snake looks like a long earthworm. It has a long flexible backbone and many interconnected muscles that help it to slither. A snake does not have feet to move. The muscles in its body are connected with the backbone, ribs and skin. It moves its body in the form of wave or an S-shaped loops on alternate sides. Each loop presses against the ground and gives it a forward push. Thus, it moves in a zigzag manner. It cannot move on slippery and polished surfaces like glass. It can easily move on grass and sand. It can also swim through water. Though it does not have arms or legs, yet it can climb trees by wrapping itself around the trunk of the tree. स्नेक आपका एक लंबे से अर्थवॉर्म की तरह दिखता है। इसकी लॉन्ग फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है और बहुत सारे इंटरकनेक्टेड मसल्स होते हैं जो उसको स्लिदर करने में हेल्प करते हैं। स्नेक के फिट नहीं होते हैं। इसकी बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं बैकबोन, रिब्स और स्किन के साथ। आप इसकी बॉडी मूव करते इन द फॉर्म ऑफ वेव या एस शेप के जो लूप्स बनाता है, आपने देखा भी होगा अल्टरनेट साइज में। तो हर जो लूप है वो प्रेस करता है अगेंस्ट द ग्राउंड एंड जिससे इसको फॉरवर्ड पुश मिलता है। फिर ये जिगजैग मैनर में मूव करता है। ये स्लिपरी और पॉलिश सरफेस जैसे ये ग्लास यानी कांच का जैसे सरफेस है उसमें ये मूव नहीं कर सकता। ये ग्रास और सैंड में ईजिली मूव करता है। ये वाटर में भी स्विम कर सकता है, हालांकि इसकी आर्म्स और लेग्स नहीं है। ये ट्रीज में भी क्लाइंब कर सकते हैं बाय रैपिंग इटसेल्फ। ये अपने आप को रैप कर लेता है अराउंड द ट्रंक ऑफ द ट्री। Learning outcomes. The human skeleton is made up of 4 main parts. These are the skull, ribcage, backbone, girdle and limbs. There are 12 pairs of bones around the chest which form a cage-like structure called the rib cage. The backbone or the vertebral column is a long hard structure that runs from the base of the skull to the lower back. Limbs consist of arms and legs. The arms are the forelimbs and the legs are the hind limbs. A joint is a point where 2 or more bones meet. Joints help in movements. There are different kinds of joints in the human body. Fixed joints, slightly movable joints, and freely movable joints. Muscles are connected to the bones by tendons which are strong and flexible bands of tissue. During the movement of a body part, one muscle contracts and the other muscle expands. Birds have lightweight skeletons so that their wings can easily lift them into the air. Earthworms move by the alternate expansion and contraction of their rings. The streamlined shaped body of the fish enables it to swim in water. A snail has a thick outer shells for the protection of its body. The backbone of a snake runs from head to tail and its body is made up of thick muscles. Children, I hope आपको चैप्टर समझ आया होगा। और इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।